Students, now let us start with question number 16. It says 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. बेटा नाउ नंबर ऑफ डिटेक्टिव पेन्स हमें दिए हुए हैं 12 एंड गुड पेन्स 132. सो टोटल नंबर ऑफ पेन हो गया 144. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन और गुड पेन्स इज इक्वल टू 132 बाय 144 बिकॉज गुड पेन्स कितने हैं 132 हैं. सो विच आफ्टर कैंसलेशन इज 11 बाय 12. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. तो बेटा जो नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हो गए 20 में से 4 माइनस किए 60. तो जो गुड बल्ब हो गए वो 16 हुए, नॉट पेन बल्ब्स. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? And second part, suppose the bulb drawn in first part is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? Now in first part बेटा हमें defective bulb की probability बतानी है. तो total bulb 4 है, उसमें से defective bulb है, total bulb 20 है, उसमें से defective bulb 4 है. तो 4 by 20 is the probability of getting a defective bulb. अब जो हमने अब बल्ब निकाला है वो हमने साइड में रख दिया और ये बोला हुआ है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड. मान लो एक बल्ब हमने निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था और उसे नहीं रखा गया, तो फिर इसका मतलब टोटल बल्ब 19 हो गए और क्योंकि वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब था तो जो रिमेनिंग बल्ब बने वो 16 में से 1 माइनस हो गया, दैट इज 15. So probability of getting a good bulb is equal to 15 upon 19. Now coming to question number 18. It says a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first part a 2-digit number, second part a perfect square number and third part a number divisible by 5. अभी टोटल डिस्क है बेटा 90 और इनकी नंबरिंग 1 से लेके 90 तक की हुई है. हर डिस्क को नंबर किया हुआ है. नाउ 2 डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक तो 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है. अब 10 से स्टार्ट होते हैं आपके 2 डिजिट नंबर, तो 90 में से 9 माइनस कर दो तो देयर आर 81 2 डिजिट नंबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर इज 81 upon 90 which is equal to 9 by 10. Second part a perfect square number. बेटा फर्स्ट लाइन में जो perfect square number है वो कौन से हैं 1 4 9 जो कि 1 का और 2 का और 3 का स्क्वायर है. देन 4 और 5 जो कि 4 और 5 का स्क्वायर है 16 और 25. इस तरह से perfect square number कितने हैं 9. So probability of getting a perfect square number is equal to 9 by 90 which is equal to 1 by 10. Third part, numbers divisible by 5. अब from 1 to 90 the number divisible by 5 are 5, 10, 15, 20 up to 90. So probability of getting a number divisible by 5 is equal to 18 upon 90 which is equal to 1 by 5. Now coming to question number 19, it says a child has a die whose 6 faces show the letters as given below A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A? बेटा टोटल आउटकम है इसके 6 फेसेस है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 क्योंकि 2 बार A है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज इक्वल टू 2 by 6 which is equal to 1 by 3. Second part, probability of getting D. Now only one D is there, so favorable outcome 1 हो गया. So probability of getting D is equal to 1 by 6. Coming to question number 20, it says suppose you drop a die at random on the regular
rectangular region shown in figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? Now children, the die can come inside the circular region or in the remaining portion. So total जो आपके पास outcome होगा, that will be area of rectangle, and favorable outcome will be area of circle, because we want to find the probability of die coming into the circle. So finding both the things, area of rectangle L into B, तो 3 into 2 6 meter square, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, डायामीटर 1 दिया है तो रेडियस 1/2 है और होल स्क्वायर पाई इंटू में 1/4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ die falling inside the circle is equal to area of circular region upon area of rectangular region, that is pi by 4 upon 6, which is equal to pi by 24. Now moving to the next question, question number 21. It says a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy it if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Second, she will not buy it. Now बेटा total ball pens है वो 144 है. Among those 20 are defective. So non-defective or good pens is equal to 144 minus 20, which is equal to 124. Now she will buy a pen is equal to 124 by 144, because she will buy a non-defective pen or a good pen, which after cancelling becomes 31 by 36. सेकेंड पार्ट, शी विल नॉट बाय इट, तो डिफेक्टिव का लेंगे हम केस इस टाइम पे. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी 20. सो हेंस शी विल नॉट बाय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ defective pen. So that is equal to 20 by 144, which after cancellation become 5 by 36. Next, coming to question number 22. It says 2 dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Now complete the following table. Event हमने लिया है that the sum on 2 die is equal to 2, सेकेंड कॉलम में 3, थर्ड कॉलम में 4. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है. ना बेटा सी हियर, इफ आई कंसीडर दैट दीज आर द आउटकम, ये हॉरिजॉन्टल रो में जो आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये आप मान लो कि एक कलर के डाई के हैं, ब्लू डाई के हैं, और जो ये वाले आउटकम्स हैं वर्टिकली 1 2 3 4, ये ग्रे डाई के हैं. तो अब हम दोनों के अगर आउटकम लिखे तो ये हम इस 1 को पहले ले रहे हैं, 1,1, फिर ये आया ये 1 और ये 2, 1,2, फिर ये 1 और ये 3, 1,3, ये 1 ये 4, 1,4, 1,5, 1,6 एंड सो ऑन. सेकेंड लाइन कैसे बनेगी, 2 से स्टार्ट करेंगे. 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 and so on. Now let us get back to the question. Now the question is see, it is said that complete the following table. तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम फर्स्ट केस में 2 आए. अब 2 कब कब आएगा, सम ये केवल एक ही है, 1 + 1 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हुई है 1/36. नाउ क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 3 आए, तो यानी 1,2 आ जाए तो भी 3 है, 2,1 आ जाए तो भी 3 है. ये देखिए ये 1,2, तो 1 + 2 3 होता है, और ये वाला 2 एंड द सेकेंड दिस 1,2 द सम गिव्स अस 3, 2,1 द सम्स गिव्स अस 3. तो ऐसा केवल 2 ही बार है. सो टोटल प्रोबेबिलिटी इन द सेकेंड पार्ट विल बी 2/36. अब अगर हमें सम 3 चाहिए, सॉरी अगर हमें सम नेक्स्ट केस में 4 चाहिए, हम 2 और 3 का देख चुके हैं, नेक्स्ट है 4 सम चाहिए. तो 4 सम कब आएगा, एक तो ये 1,3 में आएगा 4 सम, और इसके अपोजिट 3,1 में आएगा. एक चीज़ और में आएगा, दैट इज़ 2
कॉमा 2, तब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स का सम है वो क्या आएगा 4। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/36। अब अगर हमें सम चाहिए 5 का, कि जो 5 सम आना चाहिए, तो तब क्या क्या आएगा, एक तो 1,4 आएगा और 4,1 हो जाएगा, दोनों में सम 5 है। फिर 2,3 और 3,2 दोनों में सम 5 है। और कोई केस है जिनमें सम 5 हो? No. So here the probability is 4/36. So now all the answers we have written here. वन, जब फर्स्ट पार्ट हम दोबारा से देख सकते हैं 1,2, 2,1, दीज आर द टू ऑप्शन व्हेन द सम इज 3। तो 2/36 विच गिव्स अस 1/18। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था जिसमें हमें सम चाहिए 4, तो उसके हमारे पास 3 केसेस थे 1,3, 2,2, 3,1। तो 3/36 विच इज 1/12। फिर नेक्स्ट था कि हमें सम जो है वो 4 चाहिए, तो 1,4 सम जो है हमें 5 चाहिए, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। फिर नेक्स्ट है सम हमें 6 चाहिए, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1। तो इस केसेस में इसमें जो है फेवरेबल केसेस 5 है, तो 5/36। सो इन द सेम वे यू कैन फाइंड मैक्सिमम जो हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट हमें दिया हुआ है दैट इज सम 11। सम 11 है 5,6 और 6/6,5। सो हेयर द सम इज 11। ये दो केसेस ही आएंगे 11 के। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बेटा जो इसमें एक और आएगा, नेक्स्ट आएगा दैट इज सम 11। जब 6,6 होता है इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/36 होगी, बिकॉज 6,6 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि जब सम 12 हो। नाउ this is the first part of the question that we have completed the table. The second part is a student argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। मतलब जब हम दो डाइस को इकट्ठे थ्रो करते हैं तो उसके दोनों डाइस का सम जो है या तो वो 2 आता है, या वो 2 से स्टार्ट होता है, 1 तो आएगा नहीं, 1 + 1 मिनिमम है, तो या तो वो 2 आता है, वो 3 आता है, वो 4 आता है, और लास्ट वाला हो गया 12 आता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए सम के 11। Now therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. बेटा आपको ये पता है कि अगर ये सभी 1/11 तभी होगा जब सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। अगर हम देखें सम 2 आने का तो ठीक है, आपके पास 1/36 है, लेकिन अगर आप 3 देखें तो उसमें आपके पास दो केसेस है 1,2 एंड 2,1। सो देयर द प्रोबेबिलिटी इज 2/36। तो इसलिए जो है इट कैन बी सीन दैट ईच टर्म डज नॉट हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 11। सो इट इज एन इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 आने के जो चांसेस हैं वो तो केवल एक ही है, लेकिन 3 आने के चांसेस 2 हैं, 4 आने के चांसेस 3 हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये टोटल आउटकम देखें तो पहले वाले के आने के चांसेस, तो अगर हम सम को लेके चले तो 1/11 है, लेकिन दूसरे को देखें तो वहाँ पर 2 है। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट।